اهلا. دونوں کیوں؟ یہ چھوٹا ہے. تو دو ایک سے بڑا ہے. ہاں تینوں. کیا خاک اڑاتا ہے تیرا استاد. چل اتر کے ادھر بیٹھ جا. بیٹھ جا. چلو اب بتاؤ. دو جانور ہیں جو پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں. ایک کتا اور دوسری گائے. پانی اتنا کہ بس ایک جانور پی سکے. بتاؤ کتا مقدم ہے یا گائے؟ کتا. کیوں؟ کیونکہ کتے کی آنکھیں انسان جیسی ہیں. وفادار جانور ہے. بھیڑوں کی اور گھر کی رکھوالی کرتا. گائے بھی تو بچڑا دیتی ہے، دودھ دیتی ہے. اگر نر ہو تو کھیتوں میں ہل چلانے کے کام آتا ہے. بچہ پیدا کرے اور کھیت میں کام آئے. تو پانی حرام گوشت کو دیں تاکہ وہ زندہ رہے. حلال گوشت حیوان کو ذبح کریں تاکہ اس کا گوشت کھائیں. بس پانی کتے کو دیں گے. کیوں؟ کیونکہ حرام گوشت ہے. سنو بیٹا، شرعی احکام کا جاننا اور سیکھنا ایک خلیفہ کے لیے ضروری ہے. شمشیر و سپر کی حیثیت رکھتا ہے. مجھے شعر و شاعری سے زیادہ لگاؤ ہے. احسنتم یزید. مرحبا ابا یزید. یزید کہاں اور دین و مذہب کہاں. ابھی تو کھیلنے کے دن ہے. فطرتاً کتوں سے لگاؤ ہے اسے. بیچارے بچے کو حدود و مستحبات و منکرات و واجبات کا اسیر مت بناؤ. یہ دیکھو اس کا دل کیا چاہتا ہے. لکڑی جب تک کچی اور نرم ہو خم ہو سکتی ہے. امر سناؤ، جمل کی کیا خبر ہے؟ بری خبر ہے. علی تیر و ترکش سے نہیں نصیحتوں سے کام لے رہے. اصحاب جمل کے ارادے سست ہو گئے. ان کے قدم لڑکھڑا گئے. گویا علی جنگ جمل کو اپنی زبان کی ہی ذوالفقار سے جیت لیں گے. طلحہ و زبیر سے ملاقات بھی کی ہے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیا؟ ابھی تو نہیں، لیکن زبیر کو دیکھا گیا ہے علی سے ملاقات کے بعد جنگ میں دلچسپی نہیں لے رہے. اسی وقت قاصد مروان کے پاس بھیجو اور کہو کہ اگر دیر کی تو تمہیں جلا کر جنگ کے شعلے بھڑکائیں گے. بھیج بھی چکا، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ علی نے زبیر کو حکومت کوفہ کی لالچ دی ہے. امر ہمارے ولی عہد کو سیاست کے کچھ گر سکھاؤ. نہیں، سیاست ادھیڑوں کی بیماری ہے. ابا یزید، یہ شراب انگور سے مست ہونے والا ہے، شراب علم سے نہیں. سیاست و حکومت کے لیے اس کی عمر کچی ہے. ابھی زندگی کے مزے اڑانے دو. نہیں، زبیر خیانت کرنا چاہتے ہیں. جب تک علی سے نہیں ملے تھے لشکر کے پرزور بازو لگتے تھے. میں مطمئن ہوں کہ ریاست کوفہ کے وعدے نے ان کو تہو بالا کر دیا. اے گریڈ کی اولاد، میرے باپ دادا کم سے کم امانت دار تو تھے. اپنے ماضی کو دیکھو. تمہارے مردہ خور باپ دادا لاشوں کو نوچ کھاتے نظر آئیں گے. اختلاف کا بیج بو رہا ہے بے حیثیت. فسان مت کرو عبداللہ. مروان، میرے ماں باپ تیرے پاؤں پڑتے ہیں بھائی. یہ جدائی کا وقت نہیں، ہمراہی کا وقت ہے.
अगर तलवार ही आजमाना चाहते हो तो मेरी गर्दन हाजिर है। रखो नियाम में। मालिक एस्तर के घोड़े ने अगर सुन लिया तो अपनी दुम से हमारा काम तमाम कर देगा। हमारे लश्करी थक चुके हैं वलीद। जब उन्हें घर वालों की याद आएगी और ये देखेंगे कि इन तनूरों से धुआं नहीं उठ रहा है, सुस्त पड़ जाएंगे, थकन का एहसास करेंगे, फिर छोड़कर चले जाएंगे। जितना जल्दी हो सके काम तमाम कर देना चाहिए। वाह, तेरे बाप की मगफिरत हो। अब्दुल्ला, मरवान का कहना है कि हम यहां इसलिए नहीं आए हैं कि खेमों में पड़े टांग पर टांग धरे या हबीबी गाते रहे। मरवान का गुस्सा हमारी हमदर्दी में है। उसके दलाइल वाकई दलाइल हैं, ना हवाई। उम्मुल मोमिनीन और तलहतुल खैर जंग के लिए तैयार है। वहां सैफुल इस्लाम जुबैर हैं कि शक में पड़ गए। उन्हें क्या खौफ हो गया है नहीं मालूम। अली ने तुमसे क्या कहा है? तुमने सैफुल इस्लाम को कितने बेच दिया? जवाब दो इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून बहा दूं। अगर अली के पास माल होता तो अपने लिए नए नालैन खरीदते। उन्होंने तो बैतुल माल के सिक्कों से 1000 कबीलों का खून खरीद लिया। फटी हुई नालैन तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हैं। तुम उनकी बातों में क्यों आ गए जुबैर? अब्दुल्ला, मरवान जैसों की बातों को मत दोहराओ। तुम्हारी उम्र अभी अली को दर्क करने के लिए काफी नहीं। अली मेरी जिंदगी के वाकयात से वाबस्ता है। उनकी मुलाकात से एक वाकया मेरे आंखों के सामने आ गया। उम्मुल मोमिनीन से पूछो, यादगार वाकयात को समझती है। एक रोज मैं रसूल अकरम के हमराह था। हमने अली को देखा। हजरत अली को देखकर मुस्कुराए। अली भी मुस्कुराए। मैं भी यूं ही मुस्कुराने लगा और अर्ज की, अली मुतकब्बिर है। पैगंबर ने फरमाया, खामोश, अली मुतकब्बिर नहीं, तुम उनके साथ जंग करोगे और अली की निस्बत सितमकार हो। अब खतरे को देखकर अफसाना और हदीस गढ़ रहे हो ताकि भाग सको। जिस वक्त अली की बैत तोड़ रहे थे तो उस वक्त यह हसीन यादें तुम्हें नहीं आई? नहीं मालूम। शायद उस वक्त मेरे ख्वाब और ख्याल के कुत्तों ने भौंकना शुरू नहीं किया था। मुझे हक दो बेटा। ख्यालात का ऊंट भी किसी वाक़ये की वजह से बिफर जाए। जुबैर, अपने मामूजाद भाई अली के वादों में मत आओ। तुम भी अपनी खाला के वादों के आगे मजबूर न हो। अगर फतह भी हो, जो नामुमकिन है, तो तलहा खलीफा होगा, उम्मुल मोमिनीन का चचाजाद भाई। अब क्या करोगे? रात के अंधेरे में बियाबान की तरफ जाऊं और सितारों को गिनूं। अब्दुल्ला, अब
اپنے ساتھیوں کے خنجر سے ہوشیار رہنا. کیا ہوا عبداللہ؟ وہ تو اپنے خالہ ہی کے پاس جائے گا. نہیں معلوم اس کے خالہ نے کیا وعدہ کیا ہے. محمد کہاں؟ باپ بیٹے کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے مروان. میں ابھی جا کے معلوم کرتا ہوں. کیا خوب خلیفہ کشی ہو رہی ہے ولید. آج رات علی کے لشکر پر شب خوں ماریں گے. ہمارے ہاتھ کٹ جانے کے بعد جہاد کی اجازت لوگے؟ مالک، یہ لوگ نصیحت سے ماننے کے بجائے اور گستاخ ہو جائیں گے. علی جہاد کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جہاد کس کے مقابلے میں اشیس؟ اگر جمل کا انجام فقط جنگ ہے تو یہ اصحاب محمد کے لیے بدترین جنگ ہوگی. تلوار سے ہٹ کر بھی تو کچھ سوچو. پیغمبر اسلام اور ان کے داماد علی اور عائشہ کے درمیان جنگ ہوگی. یہ شب جمل خمیس روحوں کی رات ہے جس نے حقیقت کا لباس پہن لیا ہے. کیا ہم اپنی حقیقت پر شک کریں مالک؟ بالکل نہیں، بلکہ ان رنگ برنگ القاب پر شک کرو جنہیں سینکڑوں اونٹوں پر بصرے تک لایا گیا ہے. یہ نیاب الجمل ایک ایسی جہالت کی پیداوار ہے کہ جنہوں نے اونٹ سے کینہ پروری کا خدا بنا لیا ہے، جو نہ بھائی کو پہچانتا ہے نہ بہن کو. بیٹے کے ہاتھ تلوار دے دی ہے کہ باپ کو قتل کرے. جانتا ہوں، سب جانتا ہوں. ہم نادانستہ جمل نہیں آئے مالک. جس کا بھی ہاتھ یہ دل لرز جائے اس نے خیانت کی ہے. کوئی ایسا عذر پیش کرو کہ لشکر قانے ہو سکے. علی کے خیمے کی طرف جا کر دیکھو، دیکھو وہ کیسے خیانت کا شکار ہیں. علی خون کے آنسو رو رہے ہیں. آئے ہو ہم سب پر، ہم نے علی کو رلایا ہے. وائے علی کو رلایا ہے ہم نے. علی ولید کہاں ہے؟ شرط کرتا ہوں کہ مدہوش کسی گڈھے میں پڑا ہوگا اور قطام کے بارے میں سوچ رہا ہوگا. اس جیت کی خوشی میں کچھ رقص ہو جائے. بہت اچھا. ابن عمیر،
तुम पैगंबरान बेकिताब तलवार जनों को ये बता दूं कि इश्क इंसान का ऐसा ताकतवर तरीन जज्बा है जिसको कोई भी तलवार कभी भी कत्ल नहीं कर सकती। मस्ती में तुम्हारे टगमगाते कदम मैं नहीं समझता महमिल इश्क को छू भी पाए। अक्बा की औलाद क्यों नहीं छू सकता बागी साहबजादे? मकाम इश्क बुलंद है और तू ठहरा पौना। कटे हुए सर पर पैर रख के चढ़ जाऊंगा। बाप के भी कटे सर की। हत्ता अपने बाप के कटे सर पर फर्क नहीं करता। घुटन हो रही है। अश्तर तुम्हारे दरमियान तो नहीं है। मस्ती में डगमगा रहा था, हमलावरों से पिछड़ गया। शुराई उसके सर से पगड़ी उतार लो और जाने दो। चला गया? कोई आया ही नहीं तो जाएगा क्या? चाचा अम्मार, क्या बात है? फजा पे गम क्यों उतारी है? सब रंजीदा है क्योंकि अली का दिल जल रहा है। काश उम्मुल मोमिनीन अली की ज़ारो खतार गिरिए की आवाज सुन लेती। कहाँ मोहम्मद? जो अली के मुकाबिल में आई है मेरी ही बहन है। अंधेरे में तीर चलाने जा रहा हूं अम्मार, शायद कि लग जाए।
तुम हो तलहा। तलहा के बगैर कहाँ जा रहे हो मोमिन? कोई बात नहीं, इतना जानता हूं कि मुझे जाना चाहिए। एक जंग में सिपाही को देखा था जिसका आधा जिस्म तलवार ने ले लिया था, लेकिन फिर भी वो एक तरफ जा रहा था। अपना दर्द दिल तलहा से कहो, हल्के हो जाओगे। कुछ नहीं कहूंगा, संगीन हो गया हूं। मुझे पुकार रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तय नहीं था कि शक व तरदीद को आने दें सरदार। सब्र करो ताकि हिकमत की कुछ बात करो। ऐसी जगह भी आ जाती है जहां कोई किसी का साथ नहीं देता, हत्ता तलहा और जुबैर ही क्यों न हो। तुम नमाज और इमामत के वाक़े पर नाराज तो नहीं हो? इसके अलावा तुम और भी तो कुछ सोचो तलहा। खुदा हाफिज। अब्दुल्ला, अपने बाबा का ख्याल रखना। आप फिक्र न करें। गिरिया करो बहन, गिरिया। कल की जंग में भाई और बहन का मुकाबला होगा। दोनों एक दूसरे के दुश्मन। एक दान तेज कर रही है तो दूसरा तलवार। अबू बकर सिद्दीक के बेटे और बेटी के दरमियान दुश्मनी। जब तुम इतना रोती हो तो इस खाना खराब अस्मा को 2 फुरात के बराबर आंसू बहाना चाहिए। खालिजान, मैंने उससे अभी कत्ल ही कहाँ किया है जो रो रही हो।
अभी तो मौत के परवाने पर मुहर लगवाने आया हूं, ताकि मेरी तलवार आसानी से उसकी गर्दन को जुदा कर सके। अगर ऊद जलाकर खजूर और मिठाई के प्याले यहां घुमाए जाएं, तो ये जगह कब्रिस्तान जैसी लगेगी। हमारी सरदार सुन ले, खुशी से हंसें और जाएं और दूसरों को भी हंसाएं। हम सोग में हैं कि जंग में। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस आपको बाद ही में बताऊंगा। खाला को हजारों ऐसी हदीसें याद हैं, जिनमें से एक एक हदीस पहाड़ों को हिला सकती है। आप हदीस याद करके सुनाएं और गिरिया करें। मैं जंग के उमूर को संभालता हूं। मेरी गुस्ताखी को माफ करें खाला जान। पैगंबर अकरम से मनकूल अहादीस न दिखने वाली तलवारों की तरह हमारे लश्कर पर आन पड़ी हैं। आज रात हमारा एक नामी गिरामी सरदार ऐसी ही एक हदीस के हाथों अपनी जान धो बैठा है। हम जानते थे खाला जान कि अली की जुबैर से पैदर पे मुलाकात में कोई हिकमत जरूर है। बस उसके कान में कोई ऐसी हदीस या वाकया अली ने डाल दिया कि वो राह से मुनहरिफ हो गया। खाला जान, जुबैर फरार हो गया है, जा रहा हूं और उसका सर काट कर लाऊंगा। अब्दुल्ला, तुम फकत आंसू बहाओ अस्मा। जुबैर का सर। ओह, मदद करो बहन, मदद करो। वो मार देगा, अपने बाप को मार देगा वो। मामा, मेरे इन हाथों को देख रहे हो सईद? तलवार के निशान पड़े हैं इस पर। जो तलवार मेरी गर्दन काटना चाहती थी, खुद टूट गई। ये तेज आंखें रात के अंधेरों में भी दोस्त और दुश्मन के साए तक पहचानती है। मामूली सी हरकत से भी साजिश को भांप लेता हूं। नहीं पूछोगे क्यों मैं खलीफा मजलूम से ज्यादा नजदीक था? जानना चाहते हो क्यों मैं उम्मुल मोमिनीन का महरम राज हूं? नहीं जानना चाहोगे क्यों मैं खलीफा मजलूम की खूखाई का ज्यादा हकदार हूं? मेरा जानना या ना जानना किसी चीज को साबित नहीं करता। साबित नहीं करता? अभी साबित करता हूं। तुम अपने दस्ते के साथ उस जगह के मुहाफिज थे कि दुश्मन जहां से घुसकर हमारे कल्बे लश्कर तक आ पहुंचा। इसका मतलब या खयानत है, या गफलत है, या नालायकी। हटाओ अपने हाथ को। मैं जो कर सकता था वो काम मैंने अंजाम दे दिया। दुश्मन की रसाई से मेरी कमजोरी नहीं, दुश्मन की कुदरत साबित हुई है। मैं यही तुमसे उगलवाना चाहता था। कई दिन से देख रहा हूं कि लश्कर से कटे कटे से रहते हो। दांत पीस कर जाने क्या बड़बड़ाया करते हो। इसका क्या मतलब है? मैं बहुत थक चुका हूं। थक चुके हो या खयानत का इरादा रखते हो? खयानत करने में अभी मेरी नौबत नहीं आएगी। मैं खयानतकारों से थक चुका हूं। शर्म नहीं आती उम्मुल मोमिनीन के सामने बकवास कर रहे हो? जो तलवार बांधकर जंग के लिए निकलता है वो जंग से कभी नहीं थकता। ये तलवार मैंने खलीफा मजलूम का इंतकाम लेने के लिए बांधी है। तुम कातिल की निशानदही करो, अगर उसकी गर्दन न उड़ा दे तो नामर्द हूं। सुना आपने? सुना? मक्के से कूफे का लंबा सफर तय किया, लेकिन यह भी नहीं मालूम कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। बनी उमैया की जहालत का जुर्म क्या उनकी खयानत से कम है? तुम अब पानी क्यों नहीं पीते कि तुम्हारी प्यास बुझे? इधर उधर की बकते हो। यही पानी एक दिन तुम्हें दीवाना कर देगा।
अपनी जबान को लगाम दे खान। उम्मुल मुमिनीन की मौजूदगी में जबान दराजी मत करो। खलीफा मकतूल ने प्यास के आलम में जान दे दी और तुम अपनी जान बचाने के लिए छुप छुप कर पानी पिया करते थे। दफा हो जा, दफा हो जा। ये रही तलवार और ये रहा कमरबंद। हमेशा के लिए जाता हूं। मरवान, खलीफा के कातिल इसी अतराफ में है। बेकार अली पर तोहमत लगाते हो। रुक जाओ मरवान, बाज़ औक़ात हम एक दूसरे के लिए आईना है। सईद तुम्हारे ही ज़मीर की आवाज़ अगर सुन सको। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अबू बकर सिद्दीक के बेटे को जासूसी का काम सौंपा जाए। मैंने सुना था कि इब्ने अबी तालिब की खिलाफत में कोताह कद और जवान लोगों को अहम मनसब दिए जाते हैं। बहुत खूब। हमारी छावनी को कैसा पाया जवान? उम्मुल मोमिनीन से सिर्फ बात करने आया हूं। मैं नहीं समझता कि उम्मुल मोमिनीन ना महरमों के साथ हम कलाम होगी। क्या मुमकिन है? दिल में हसरत है कि तुम्हें बहन की मोहब्बत दे सकूं। पानी लाऊं, मेरे भाई का खाकालू चेहरा धो दूं। अच्छा, इसका मतलब कि अली की नसीहतों ने उम्मुल मोमिनीन के खैमे के सुतून तक को लर्जा दिया है। तो फिर ये सुर्ख बालों वाले ऊंट का किस्सा भी तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। ये बदबख्त आले उमैया हैं जो अपनी जहलत की वजह से दूसरों का साथ देते हैं। ठहरो सईद, ठहरो, दोनों साथ चलते हैं। मरवान, खैर मनाओ कि तुम उम्मुल मोमिनीन की पनाह में हो। मसलहत तो इसी में है कि उनके पास रहकर बर्तन धोते और कपड़े रफू करते। देख रही हो अस्मा, इन मुफसिद शुयूख के परवरदों को देख रही हो? मैं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक का बेटा, आयशा का हम खून ना महरम शुमार किया जा रहा हूं, और ये नाकारा भेड़ों की रेवड़ महरम तन्हाई है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर हराम ना होता तो खुदाए ला यजाल की कसम शर्म के मारे तलवार उठा के अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता। शर्म आती है अपनी बहनों को अबू सुफियान के नापाक बेटों के हाथों खिलौना देखूं। ये लोग हुकूमत की खातिर अपने सगे भाई का कलेजा चबा जाते हैं। उनके नजदीक उस्मान का कुर्ता, आयशा का मकाम सिक्कों की झनकार के बराबर भी नहीं है। मोहम्मद, तीरों तलवारों की दरिया से गुजरकर हमारी सरजनिश करने आए हो। जरूरी था ना मेरा आसमा। मैं अली के टूटे हुए दिल का पैगाम लेके आया हूं। जानती हो तुम क्या कर रही हो? जानना चाहोगी? ये भोले भाले सीधे से लोग जो खूखाही के चक्कर में आके ऊंट के पीछे निकल पड़े हैं, इनके खून का जवाब कौन देगा? मेरे साथ रिसालत की खुशबू से महकती मदीने की गलियों में चलो। सोचो, गदीर खुम के मैदान को याद करो बहन, जब रसूल खुदा की आंखें इस दुनिया से बंद हो रही थी। किसके आगोश में सर था? सोचो, लिल्लाह कुछ सोचो। राह अली के अलावा कौन सी राह हक है?